who is giving you more unnecessary इतने attitude in the अब तो मेरी industry? वाइफ पे थोड़े बड़े लेवल के बड़े विलन हो गए अभी, Me? ये छोटे मोटे विलन नहीं, अब लोकल कौन नहीं है सा अभी मेरी वाइफ। ये लोकल है। हाँ लोकल है अभी। करण जौहर का पत्ता साफ। अब नए विलेन कौन है? ठीक है, हंसी के आई थिंक इंडस्ट्री में जो है शो के कॉफी विद करण के उसको पता ही है, वो करतूतें उसकी ऐसी हैं तो उसको पता है। क्या करतूत है? he knows he is very snooty, very snooty, very classist, very snooty, and he was taken aback कि I gave it back to him, पर ठीक है, वो भी था एक वक्त। I have to say, and this is probably the first time I will be speaking about it, is like when you invite a guest, you're going to be kind. Of course. So she was my guest. Yeah. So I have to hear what she has to say, and she has a right to have an opinion. When she says flag bearer of nepotism, I just want to say I'm glad she knows what it all means. But I don't think she's understood the entirety of that statement, because what is nepotism? That am I working with my nephews, nieces, daughters, sons? And what about those 15 filmmakers who are not from the film industry who have launched and put into the movies? That no one will talk about. That no one will talk about a Tarun Mansukhani who didn't come from the movies, you know, or a Puneet Malhotra who's a costume designer's nephew. He's not entirely, that doesn't qualify as nepotism. Shakun Batra, who came from no film background. Shashank Khaitan, who comes from no film background. You give these people film careers and they have and platforms to stand on. That is the reverse of nepotism. But that, of course, you will not get credit. Maybe she was talking about the actors. But that's two of them, Alia Bhatt and Varun Dhawan, that you've introduced. And Siddharth Malhotra is also one-third of that pie, who's got nothing to do with the movies. So I didn't get what she meant. I mean, she meant movie mafia. What does she mean? Because what does she think we're doing? Sitting and not giving her work? Is that what makes us mafia? No, we do that because by choice. You know, not because we do that because I do that because maybe I'm not interested in working with her. That doesn't make me movie mafia. It makes me a man with an opinion. You know, so I mean, I don't get that. I'm like, of course, because I was gracious enough to keep everything. I cut none of it out. I kept it. I could have edited so much out. It was my show. I said, no, let the world see that this is her opinion and she must say it, voice it. I gave her the platform. This is my platform, so I'm telling you what I think. इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है, इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं, कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द स्टेट ऑफ। जो 5-6 साल पहले जो है हमारे इंडस्ट्री में भी मी टू का मूवमेंट आया, सारे लोग उभर के आए, और अधिकतर फिल्म इंडस्ट्री ने जो है इसी तरीके से एंटरटेन नहीं किया। बहुत सारे फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स जो है इसकी चपेट। मैंने खुल के उसके विषय में लोगों को जो है, क्योंकि मैं तो खैर इस तरह की पर्सनैलिटी हूँ, मुझे जो है अब तो सक्सेसफुल होने के बाद इस चीज़ों का फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन मैंने उन महिलाओं के पक्ष में बोला कि अगर मेरे दोस्त ने भी ये किया हुआ है, यस, तो मैंने उनके पक्ष में बोला। लेकिन एसेंशियली फिर क्या हुआ, पैसों के नाम पे उन महिलाओं को भी खरीद लिया गया। मैं उनको ढूंढती रह गई, सब गायब हो गई। कुछ जो थी उन लोगों ने फिल्म एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में रादर उन प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लॉयट करके कुछ फिल्में भी साइन कर ली, उनको भी मैं ढूंढती रह गई, फिर बच गई मैं अकेली। अच्छा, विक्टिम्स ने भी एक्सप्लॉयट कर लिया? यस, विक्टिम्स ने नहीं, कुछ जो विक्टिम्स थे उनको पैसा वैसा देके चुप करा लिया। कुछ इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए जो विलिंगली भी उस सिचुएशन में थे, कुछ तो विक्टिम होंगे, कुछ तो विलिंगली वर आल्सो इंडल्जिंग इन सच एक्टिविटीज। नो, उन्होंने भी पैसे लेके, फिल्म्स लेके जो है ये। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद विमेन, डिसअपॉइंटेड विद दीज विमेन। मैं रह गया, मैं बन गई प्रॉब्लमेटिक पर्सन। यही हमारा नाम खराब करती है, इसने इंडस्ट्री का नाम खराब किया टाइप से। फिर बेचारे और महिलाओं ने जो अपनी रिपोर्ट दी होंगी, ताकि एक मैं यहाँ से प्रेशर बना रही हूँ, अलग अलग इंडस्ट्री से भी ये प्रेशर आए, उनको वहां सिस्टम ने दबा दिया।
उस टाइम पे अगर ये आती है रिपोर्ट तो सब इंडस्ट्री से एक साथ प्रेशर आ जाना था ना। उनको वहां पे कहीं खत्म कर दिया, यहाँ पे इनको पैसे ठूस के इनके मुंह में इनको खत्म कर दिया, फिर बच गई कंगना रनौत अकेली। सारी इंडस्ट्री फिर मेरे पे केस पे केस पे केस, मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरकार तो फिर वही हो गया ना मेरा हिसाब के मारे। तो क्या करें फिर, क्या हो सकता है इनका, आप बताइए। अगर महिलाएं जो हैं खुद इस तरह का बिहेव करेंगी, फॉर एग्जाम्पल महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने इतनी फिल्में की, चाहे आउटसाइडर इनसाइडर हो, कभी मेरी कोई फिल्म रहती तो ये सब मुझे अटैक करते हैं। कौन है? कभी अगर इमरजेंसी जैसी फिल्म अच्छी तो एक बात नहीं करती हैं, छुप के बैठ जाती हैं सब। मैं एक्टिवली जो है ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड इस काम में लगी हुई हूँ। क्या सब गैंगअप हो जाते हैं आप? बिल्कुल। कौन है ये लोग? आपको पूछना चाहिए ना इनको। इफ यू फाइंड दीज एक्ट्रेसेस यू शुड टॉक अबाउट अ वुमन डायरेक्टर। एक वुमन डायरेक्टर हैं जो अपने बलबूते पे आ रही हैं, आप लोगों के लिए भी कल को रास्ते खुलेंगे, आपको बात करनी चाहिए इसके बारे में। तो कहने का मतलब ये है, मी टू की मूवमेंट को जिस तरह से मारा गया और उसका मुझे ही फिर के इसी ने सबको इक्कठा किया हुआ था और यही इंडस्ट्री के पीछे पड़ी हुई है। पर आप खुल के बोलती हैं। मेरे सामने 2017 का आपका एक बयान है। आई थिंक यू करण, मैं आपके मुंह से सुनकर बहुत खुश हूँ। आपने मुझे अपने जीवन में बहुत प्रेरित किया। आपने मेरा मजाक ना बनाया होता, रिजेक्ट ना किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अगर कभी मेरी बायोपिक बनती है तो आप उसमें वो स्टीरियोटिपिकल बॉलीवुड प्रोड्यूसर जो भाई भतीजावाद का परचम बुलंद किए हैं, आउटसाइडर्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, वैसे मूवी माफिया बनेंगे। आप मेरी बायोपिक के विलेन होंगे। इतनी अब तो मेरी बायोपिक थोड़े बड़े लेवल के बड़े विलन होंगे अभी, एक छोटे मोटे विलन नहीं, लोकल नहीं है अभी मेरी बायोपिक। ये लोकल है? हाँ लोकल है अभी। करण जौहर का पत्ता साफ। अब नए विलेन कौन है? इसको अभी छोटा विलन बनाएंगे। छोटा विलेन होगा करण जौहर। बड़ा विलेन कौन होगा? बनेंगे अच्छे बड़े बड़े विलन आएंगे अब मेरी लाइफ में, ऐसे थोड़ी। ये जो ट्रेजरी बेंच के उस तरफ बैठते हैं वहां से आएंगे? नहीं ये ठीक है, हंसी के। आई थिंक इंडस्ट्री में जो है लोग एक लाइटनेस रहती है इंडस्ट्री में, चाहे हम आसपास भी मिले या कुछ। लाइटनेस है, आप उन्हीं के शो पे जाके आप तो तभी तो बोला ये जो अभी मैं जिस एनवायरनमेंट हूँ, मैं काफी वो सीरियस एनवायरनमेंट है। उधर हर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस, ये राहुल जी के बयान पे मेरे को 2 नोटिस आ गए सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, जाति गणना पे लेके सुप्रीम कोर्ट का नोटिस फटाफट भेजते हैं। तो पर फिल्म इंडस्ट्री में यार दो बातें बोल दी, क्या करेंगे, बस निकल गए। फिर शूट के बाद उन्होंने कुछ बोला कि करना आपने मुझे ऐसा बोल दिया? क्या हुआ था शूट के बाद उस शो के कॉफी विद करेंगे? उसको पता ही है, वो करतूतें उसकी ऐसी हैं तो उसको पता है। क्या करतूतें हैं? He knows. He is very snooty, very snooty, very classist, very snooty, and he was taken aback. कि I gave it back to him. पर ठीक है, वो भी था एक वक्त।